There have been complaints that have been pouring in from various parts of the Kashmir Valley where environmentalists, locals have raised the red flag about illegal activities that are happening very close to very important and ecologically fragile water bodies. Now, one such story is coming in from Kulgam, where the famous Veshu Nala, which is one of the identities of Kulgam and is a very beautiful water body. Unfortunately, these days there is stone mining that is happening in this Nala, which is resulting in this water body dying a slow, painful death. Even aquatic organisms like the famous troutfish, which is one of the identities of Kashmir, are dying, and it is directly impacting the livelihood of fishermen, hundreds of whom are protesting these days because they say that now fish, they cannot catch any fish because there is no fish left, water is drying, and this water body is dying a slow, painful death. Now, according to them, they have raised this issue with the authorities multiple times, but nothing has been done to stop this activity and restore this water body to its previous pristine best. Now, this is not only about Kulgam, various other places, similar incidents, similar things are happening where at some places there is stone quarrying, other places there is sand mining, and a lot of other activities that are happening in these water bodies. Now, government obviously needs to wake up because while it is something that is related to the livelihood of fishermen, but if you look at the bigger picture, it's also ecologically very damaging because if these water bodies are impacted in this way, the aquatic life will die and the fragile ecological balance will be disturbed. So this coming in SOS from Kulgam, where Veshu Nala dying a slow, painful death because of stone mining, and locals and environmentalists, including fishermen, up in arms and demanding that the government should immediately intervene. तो जैसे कि अगर हम वेशु नाला की बात करें, जो यहाँ पे हमारे जो माहीगीर तबका है, उनका जो रोज़गार था, उनका जो सब कुछ था, उसी पे बसर हो रहा है। पर बदकिस्मती से, अफसोस से ये कहना पड़ा, पिछले 2 सालों से जो ये इलीगल माइनिंग होती है, उस पे उन पे परिवार पे भी असर पड़ा है कि इससे पहले ये 2 किलो 3 किलो यहाँ से पकड़ते थे, अपने परिवार को अच्छे से चलाते थे। बट उनका कहना भी है कि उनका जो परिवार है वो मुतासिर हो रहा है इलीगल माइनिंग से, क्योंकि जो बायोडाइवर्सिटी पे असर पड़ रहा है, उसका नतीजा कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। दूसरी बात अगर मैं बता दूं, ना कि इसके फिश तबके पे असर पड़ रहा है, बल्कि जो हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस है, हमारा जो जल जीवन है, वो भी इसी पे है। जबकि नाले को कभी इस वक्त इस तरफ डाइवर्ट किया जाता है, कभी इस तरफ डाइवर्ट किया जाता है, तो उससे मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि हमारा जो जल जीवन है वो भी मुतासिर हो रहा है। एज पर मतलब जो मैं देख रहा था, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन ने वेशो फेस्टिवल का इनेकाद किया था, उसका मुद्दा और मकसद यही है कि हम इस वेशो बेल्ट को कैसे प्रिजर्व करें। पर बदकिस्मती सान से मुझे कहना पड़ रहा है कि वो ना फेस्टिवल तक ही महदूद रहा। ग्राउंड लेवल पे अगर हम देखेंगे, कुछ स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए थे डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज ने, बट वो भी आप देख रहे हैं वो भी मुतासिर हो रहे हैं, क्योंकि जब माइनिंग हो रही है, वो तो एक तो लीगल माइनिंग होती है, दूसरी जो इलीगल माइनिंग होती है वो पीक पे होती है, वो दिन रात होती है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए। उन बेचारों का जो घर है, उनका जो परिवार है, वो मुतासिर हो रहा है। मैं भी तो मतलब यही मतलब जो हमारी नॉलेज थी कि ये जो नाला था ये ट्राउट फिश के लिए माना जाता था, बट अब तो आपके सामने ही था, कभी मतलब मैंने तो फिश स्पॉट के लिए माना जाता था, बट आज बदकिस्मती सर कहना पड़ा कि आज यहाँ पे कुछ देखने को मिलता ही नहीं है। लोगों ने यहाँ पे क्या किया, डंपिंग की है, जो वेस्ट डंपिंग हो रही है यहाँ पे नालों में, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस बेल्ट को उस तरफ डाइवर्ट किया, अब 1 साल बाद उसको यहाँ डाइवर्ट करेंगे, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं उसका असर उन फिशरमैनों पे पड़ रहा है। देखिए, लाइवलीहुड के बगैर अगर हम बात करेंगे तो जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस है तो वो लॉस हो रहा है, जो यहाँ पे जो नेचुरल हैबिटेट्स है वो लॉस हो रहा है। आपको देखने को मिलेगा कि पहले ज़माने में जो बच्चे थे उनको यहाँ पे एज ए टूरिस्ट स्पॉट ये माना जाता था, बट आप देख रहे हैं कि वीरानी की हालत में है, ये खस्ताहाली उसकी अब हम देखनी पड़ती है। जो अब एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है कि उनका जो मुतालबा है, उन बेचारों के साथ इंसाफ होना चाहिए। एटलीस्ट ये भी तो हमारे सोसाइटी का एक हिस्सा है। मेरा नाम बशीर अहमद ऋषि सर, मैं एक काम करता है, मछली काम करता है, 60 साल हो गया मछली काम करते। उधर तो नाला खत्म हो गया। किस वजह से खत्म हुआ सर? ये गवर्नमेंट ने उसको जेसी मशीन लगाया है, वो इसको खत्म हो गया, वो मछली मर गया। उधर तो पानी भी खत्म हो गया। गवर्नमेंट से गुजारिश है कि हमारे मुतालबा करो, हमारी मुतालबा ये है, मुतालबा ये बंद हो गया, बंद करो जेसी मशीन को।
कितनी मछलियाँ पकड़ते थे आप? बस आज पकड़ते हैं आधा किलो सर, कुछ नहीं पकड़ते, आधा किलो तो बहुत कम है, आधा पाव। रोजगार पे कितना असर पड़ा? रोजगार तो बहुत असर पड़ गया, बहुत असर पड़ गया सर। 100 रुपया क्या 100 रुपया कमाता है, 50 रुपया कमाता है फिर मछली में, आज तो बहुत महंगाई। हमारा यही काम हमेशा किया, यही काम, परिवार हम इसी को ऊपर चलाता है। हमारा 10 परिवार है पीछे, वो इसी कार से चलता है। जब यहाँ लग गया ये मशीन इसने मछली भी खत्म किया तो हमारा रोजगार ठप हो गया। हम क्या करेगा? हम गवर्नमेंट को अपील करता है, हमारा भी कुछ सोचो। हम आपको वोट भी देता है, अगर हम वोट उसको देता है, उसको भी हक समझता है, उसको हमको भी कुछ करना पड़ता है। लाइसेंस भी है आपके पास? हमारे पास लाइसेंस है, 60 साल का लाइसेंस है मेरे पास, मौजूद गवर्नमेंट का पास। आप लोग कहाँ लगता है? यहाँ मछली नहीं लगता है, क्या करूँगा? इसीलिए क्या करूँगा? हम अब मजदूरी भी नहीं लग जाएगा, हम बड़ा हो गया। घर कैसे चलाते हैं? पहले मजदूरी करता है, ये बच्चा छोटा वही मजदूरी करता है, तो फिर चलता कुछ न कुछ चलता है। जो नाला विशु है जहाँ पर ये मछुआरे हमारे काम कर रहे हैं, इनके लिए भी हमने सोचना है कि ये भी इनका रोजगार दिन ब दिन कम हो रहा है। हम कोशिश हमारी होगी जो सरकार इनके लिए कर सकते हैं, हमें वो करना चाहे। With Campus and Tariq Loan, Mir Farid, Srinagar for India Today.